Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स पेंटिंग बुक वन का मॉड्यूल टू इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आर्ट का लेसन नंबर 6 इम्प्रेशनिज्म का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Our next topic is dance class. Title is also dance class. Artist was Edgar Degas. Medium oil on canvas. Period was 1873 to 1876. Style was also Impressionism. Collection Museum of Art, Toledo, Ohio, USA. So let's begin to study. But before, let's see the picture of dance class. General description about dance class. The painting dance class was created by a French painter, Edgar Degas, born in Paris, Naples in 1834. Unlike other Impressionists, Edgar Degas refused to paint from nature. He was interested mainly in human presence. Among his most notable achievements are his paintings of ballet dancers in frill skirts practicing, getting ready, or just revolving around the stage. His off-center composition gave impression of spontaneity to capture gesture or a pose full of life. In most of his paintings, he preferred to play with artificial light of the theater than to sunlight. His most favorite medium was pastel. Sometimes he used different mediums in the same picture or else he would supremo post coats of pastel in order to obtain transparencies between layers. Other than painting, Degas also took up sculpture to express rhythmic movements of dancers in real space. जो डांस क्लास पेंटिंग है वो फ्रेंच पेंटर एडगार डेगास के द्वारा क्रिएट किया है जिनका जन्म 1834 पेरिस में हुआ था। दूसरे इम्प्रेशनिस्ट पेंटर के जैसे उन्होंने नेचर के ऊपर पेंटिंग करने से मना किया था एडगार डेगास ने। वो सिर्फ इंटरेस्टेड थे ह्यूमन के प्रेजेंस में, वो ह्यूमंस के ऊपर ही पिक्चर बनाना पसंद करते थे। और उनका जो ज़्यादातर अचीवमेंट्स है पेंटिंग्स में, उसमें जो बैलेट डांसर है जो अपने फर्स्ट स्किट में प्रैक्टिस कर रहे हो डांस के लिए या फिर जस्ट डांस के लिए रेडी हो रहे हो या फिर स्टेज पे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, उन सब के ऊपर उन्होंने पेंटिंग बनाया था। उनका जो ऑफ सेंटर कंपोजिशन था, उनका जो इम्प्रेशन था बहुत ही अच्छा था। उन्होंने रियल लाइफ के फुल पोज को गेस्चर करके उन्होंने अपने पेंटिंग में कैप्चर किया था। और उन्होंने अपने ज़्यादातर पेंटिंग्स में क्या प्रेफर किया था, आर्टिफिशियल लाइट को, थिएटर वाला, ना कि उन्होंने सनलाइट को ज़्यादा महत्व दिया था। उनका जो मोस्ट फेवरेट मीडियम था वो पेस्टल था। कभी कभी वो डिफरेंट मीडियम को भी सेम पिक्चर में यूज़ कर लेते थे जिससे उनका जो ट्रांसपेरेंसीज है लेयर्स के बीच में अच्छा सा बने रहे। और दूसरों पेंटिंग के मुकाबले जो डेगास थे उन्होंने स्कल्पचर भी बनाया जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया रिथमिक मूवमेंट्स ऑफ डांसर इन रियल स्पेस। जो अपने उन्होंने मूर्तियां बनाया उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो डांसर है वो मूवमेंट्स कर रहे हैं। एंड नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.3, ट्राई टू दिस all questions to solve. Now next topic is still life with onions. Title is also still life of with onions. Artist was Paul Cézanne. Medium oil on canvas and period was 1895 to 1900. Style post impressionism. Collection Musée d'Orsay, Paris. Children description about still life with onions. Paul Cézanne, 1839 to 1906, was a post-impressionist who explored new means of expression. His paintings show simplification of natural forms. According to him, everything in nature could be reduced to solid geometrical, such as cone, cylinder, and cube. He tends to turn recognized or real forms into structured impressions. Thus, he was said to start abstract painting, which later gave birth to Cubism. He is known as father of Cubism. Whether it was his still life, landscape, portrait, or familiar humble folk, all his paintings convey intense study of the selected
Subject. In his painting Still Life with Onions, he rendered forms by interpreting the light and shade of an object in varying tones of same colors. He used plain color strokes to depict color relations. His composition shows perfect vertical and horizontal breaks with interesting arrangement of three-dimensional forms in space. With the use of red and yellow, the vibration of light is reproduced, while sufficient quantity of blue and white drapery adds the feeling of air and space. Cezanne would be always regarded as the father of modern painting, as his style forms the bridge between the late 19th century Impressionism and the early 20th century Modernism or Cubism. Before understanding this topic, see the picture of still life with onions. This is a picture. Now let's try to understand about this topic. पॉल सेजान, जिनका पेंटिंग 1839 से 1906 के बीच में रहा है, वो एक पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट थे जिन्होंने न्यू मीन्स से एक्सप्लोर किया अपने एक्सप्रेशन को. उनका जो पेंटिंग्स था वो नेचुरल फॉर्म्स में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड था. उनके अनुसार जितने भी चीज़ नेचर में उनको हम लोग सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप में चेंज कर सकते हैं, सच एज कोन, सिलेंडर एंड क्यूब. उन्होंने रियल फॉर्म्स को अपने स्ट्रक्चर इम्प्रेशन में जाके ऐड किया और उन्हें कहा कि जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो बाद में क्यूबिज्म को जन्म देगा, और उन्हें फादर ऑफ क्यूबिज्म के नाम से भी जाना जाता है. पॉल सेजेन को फादर ऑफ क्यूबिज्म के नाम से भी जाना जाता है. उनका जो स्टिल लाइफ पेंटिंग है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और जो फैमिलियर हम्बल फॉक है, जितने भी पेंटिंग्स है वो इंटेंस स्टडी है, और ये सिलेक्टेड पेंटिंग्स है किसी भी सेलेक्टेड सब्जेक्ट के ऊपर. उनके पेंटिंग में स्टिल लाइफ विद अनियंस उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट किया है लाइट और शेड के कॉम्बिनेशन से, और इसमें उन्होंने अलग अलग कलर्स को वेरीफाई करके वेरी करके टोन्स दिया है. उन्होंने क्या किया कि जो प्लेन कलर का स्ट्रोक दिया है अपने कलर रिलेशन को में उन्होंने अच्छे से डिपिक्ट किया है. उनका जो कंपोजिशन है वो एक परफेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ब्रेक के साथ एक इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट में थ्री डायमेंशनल फॉर्म्स के स्पेस में किया गया है. उन्होंने रेड येलो कलर की कॉम्बिनेशन को वाइब्रेंट करके कलर लाइट को रिप्रोड्यूस किया है, और उनका जो सफिशिएंट क्वांटिटी है ब्लू और व्हाइट ड्रेपरी का, उसमें उन्होंने एयर और स्पेस को फीलिंग्स को उसमें ऐड किया है. जो सेजेन थे वो हमेशा फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स के नाम से भी जाने जाते हैं, कि वो जो मॉडर्न पेंटिंग्स के जो फादर है वो सेजेन ही कहलाते हैं, और उन्होंने एक नया स्टाइल को फॉर्म किया था 19th सेंचुरी इम्प्रेशनिज्म से लेकर के उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी मॉडर्निज्म और क्यूबिज्म, उन्होंने एक बीच में एक ब्रिज को फॉर्मेशन किया था. Here is your in-text question 6.4. Try to solve these questions. Starry Night. Title Starry Night. Artist Vincent van Gogh. Medium oil colors. Period 1889. Style was also post-impressionism. Collection National Gallery, London. General description of Starry Night. Vincent van Gogh, 1853 to 1890, was a Dutch painter. Though his life was full of mysteries, poverty, and discouragement, he was a dedicated painter. In all of Van Gogh's paintings, colors carries greater importance than just the expression of the forms. He tends to depict natural scenes in terms of colors, not light and shade. In his painting Starry Night, there is a nighty sky filled with stars. His painting shows well-balanced compositions with harmony of colors. The painting is composed with various elements like swirling cloud, glowing stars, and a bright moon. In the background below the hills lies a small town with a church and small buildings. To the left of the painting, there is a massive dark structure depicting top of an isolated cypress tree. The stars in the night sky are surrounded with their own orbit of light. विंसेंट वैन गॉग 1853 टू 1890, और ये एक डच पेंटर थे. उन्होंने अपने उनका जो पूरा जीवन था वो रहस्यमय था, गरीबी से भरा था, और उनके पूरे जीवन में निराशा ही निराशा भरी हुई थी. फिर भी वह एक डेडिकेटेड पेंटर थे. जो वैन गॉग्स थे उन्होंने पेंटिंग्स कैसे किए, उन्होंने कलर्स को क्या किया, उन्होंने ज़्यादातर कलर्स को इम्पोर्टेंस दिया, ना कि उन्होंने लाइट्स को इम्प्रेस किया या फिर शेड को ज़्यादातर
बस वो नेचुरल सीन के ऊपर ही पेंटिंग्स किया करते थे। अपने पेंटिंग स्टारी नाइट में उन्होंने नाइट स्काई को दिखाया जिसमें सिर्फ तारे भरे हुए हैं। उनकी पेंटिंग्स में बैलेंस्ड कंपोजिशन था, हार्मोनी कलर्स का, जितने भी कलर्स थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे उनके पेंटिंग्स में। ये जो पेंटिंग्स है वो वेरियस एलिमेंट्स के साथ कंपोज किया है, जैसे कि उनके पेंटिंग में बादल जो स्वर्ल कर रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, और जो मून है वो भी चमक रहा है, और साथ में जो उनका बैकग्राउंड है उसमें वो पहाड़ों को दिखाया है, और साथ में एक छोटा सा शहर दिखाया है, और एक चर्च है, और आसपास छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। और लेफ्ट ऑफ पेंटिंग्स में उन्होंने दिखाया कि बहुत ज्यादा डार्कनेस है, जो कि उनके पेंटिंग्स में साइप्रस ट्री को आइसोलेट कर रहा है। जो स्टार्स है नाइट स्काई में वो अपने ही लाइट के ऑर्बिट में से घिरा हुआ है। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ द स्टारी नाइट। This representation of the sky keeps the viewer's eyes moving about the painting, following the curves. His starry night seems to be a whirlpool galaxy with bold, pure slabs of blue and white oil colors. This study of night sky led to convey his own inner conflicts and sleepless nights. Van Gogh had an original vision to depict the simplicity and acuteness of expression. His other famous painting that made him one of the most outstanding painters are Sunflower, Potato Eater, Wheatfield, and Cypresses. His own self-portrait and his own bedroom. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्काई का, वो व्यूअर्स के आइज में क्या दिखाता है कि जो पेंटिंग है वो मूव कर रहा है, और कर्व्स को अगर फॉलो करेंगे तो लगेगा कि जो पेंटिंग है वो मूव कर रहा है। उनका जो स्टारी नाइट का जो पेंटिंग है वो कैसा दिख रहा है कि जैसे गैलेक्सी घूमते रहता है हमारा, उस तरह से ये जो स्टारी नाइट पेंटिंग है वो भी घूम रहा है। और इसमें उन्होंने ब्लू और व्हाइट ऑयल कलर्स का बहुत ही अच्छे से कॉम्बाइन करके इस पेंटिंग को बनाया है। इस नाइट स्काई को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ये हम लोग को क्या कन्वे करेगा, ये उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को और स्लीपलेस नाइट्स को हमारे सामने रखता है। जो वैन गॉग थे वो एक ओरिजिनल उनका विजन था, किसी भी पेंटिंग्स को लेकर वो बहुत ही सिंप्लिसिटी और एक्यूटनेस एक्सप्रेस करते थे। उनका जो दूसरा प्रसिद्ध पेंटिंग है जो उन्होंने बनाया और उनको सच में एक आउटस्टैंडिंग पेंटर बनाता है वो है सनफ्लावर, पोटैटो ईटर, विटफील्ड, साइप्रस, हिज ओन सेल्फ पोर्ट्रेट। उन्होंने अपना खुद का एक पोर्ट्रेट बनाया, साथ में उनका एक अपना बेडरूम। Now here is your in-text question 6.5. Try to solve these questions. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करें। यही रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और सारे का आंसर यहाँ दिया गया है। That's all for today. Thank you everyone.